Good morning, children. Today we will be reading lesson 10, The Daffodils. The Daffodils has been written by William Wordsworth. William Wordsworth is a poet of nature. He is called a romantic poet. He has written many poems on nature. So, The Daffodils is also a poem which tells us that nature is very, very beautiful. So, let us start reading. I wandered lonely as a cloud. I कौन है? The poet. Wandered means घूमना. एक बार मैं घूम रहा था. Lonely as a cloud. अकेला, जैसे एक बादल घूमता है. कहाँ पे बादल घूमता है? हाई, फ्लोट्स हाई ऑन ओवर वेल्स. वेल्स मीन्स वैलीज. जैसे एक बादल घूमता है, फ्लोट करता है वैलीज एंड हिल्स के ऊपर, उसी तरह से मैं भी घूम रहा था. द पोएट वॉज वॉन्डरिंग लोनली. वो अकेला ही घूम रहा था, एक बादल की तरह जो कि पहाड़ों और वैलीज के ऊपर जो फ्लोट करता है. तो पोएट कैसे घूम रहा था? बादल की तरह. हु वॉज वॉन्डरिंग? द पोएट. द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ with what? He compares himself with a cloud. How was he feeling at that time? He was feeling lonely. He was feeling lonely. When all at once I saw a crowd. All at once means suddenly. उसी टाइम अचानक I saw a crowd, a host of golden daffodils. मैंने देखा crowd, a host of golden daffodils means crowd means abundance, many ढेरों of golden daffodils. मैंने पीले रंग के बहुत सारे ढेरों daffodils को देखा. What did the poet see? He saw abundance of daffodils of golden color. Who saw the daffodils? The poet saw. What was he doing at that time? He was wandering. Who was along with the poet? No one. He was lonely. He compared himself with what? He compared himself with the cloud. So क्या देखता है वो? डैफोडिल्स, पीले रंग के ढेरों डैफोडिल्स वो अचानक दिखता है. एट वंस. ऑल एट वंस मीन सडनली. सडनली ही हैपन्स टू सी अ क्राउड, many, a host, abundant daffodils, बहुत सारे ढेरों. Beside the lake. Beside means by the side of. They were growing by the side of the lake. Lake के नजदीक थे वो. Who were beside the lake? The daffodils. Where were the daffodils growing? They were growing near the lake. Near the lake. Beneath the trees. Under the trees. कहाँ पे daffodil उगे हुए थे? Trees के अंडर और lake के पास. Under the trees. They were growing under the trees. They were growing near the lake. Who were growing there? The daffodils. How many daffodils were grown there? There were abundant of daffodils. Many daffodils. Now let us see what the daffodils were doing. Fluttering and dancing in the breeze. Breeze होती है wind. जब हल्की हल्की हवा चलती है तो ब्रीज बोलते हैं. तो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? दे वर फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहे हैं. दे वर मूविंग देयर हेड्स. दे वर मूविंग देयर हेड्स एंड दे वर डांसिंग इन द प्लेजेंट विंड, इन द वेरी कूल ब्रीज. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. द डैफोडिल्स वर वेरी हैप्पी. They were, it appeared to the poet as if they are dancing. तो daffodils क्या कर रहे हैं? वो फ्लटर कर रहे हैं. They were fluttering. They are फड़फड़ा रहे हैं, जैसे अपने विंग्स फड़फड़ाते हैं ना, बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लटर करते हैं. तो daffodils क्या कर रहे थे? जैसे अपने गर्दन हिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं. तो ये पोएट को दिखा. तो he was very happy to see the scene of so many daffodils growing near the lake and under the trees. Continues.
as the stars that shine. कंटिन्यूस, कौन कंटिन्यूस था? एंडलेस। कंटिन्यूस क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं, लगातार, एट ए स्ट्रेच। तो डैफोडिल्स जो थे वो कंटिन्यूटी में उगे हुए थे, ब्रेक ही नहीं है। आगे जहां तक नजर जा रही है डैफोडिल्स ही है। दे वर ग्रोइंग एंडलेसली, जैसे कि सितारे आसमान पे चमकते हैं, जहां तक देखो सितारे ही सितारे होते हैं, चलते जाओ सितारे ही आपको दिखते जाते हैं, स्टार्स। उसी तरह से ये भी कंटिन्यूटी में उगे हुए थे। कौन कंटिन्यूस कौन है? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स हैव ग्रोन in a large number and at a very vast area. They were endlessly grown. They had grown up, they have popped up endlessly and twinkle on the Milky Way. जैसे स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं मिल्की वे में, ऊपर आसमान पर, उसी तरह से डैफोडिल्स जो थे वो भी इसी तरह से वो फ्लटर और डांस कर रहे थे, तो इसको लगा जैसे ट्विंकल कर रहे हैं। तो डैफोडिल्स किसके साथ कंपेयर किया? स्टार्स के साथ। डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर किया? स्टार्स के साथ। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। दे मीन्स डैफोडिल्स, स्ट्रेच्ड मीन्स वो उगे हुए थे, स्ट्रेच का मतलब फैले हुए थे, स्प्रेड। डैफोडिल्स फैले हुए थे जैसे उनकी कभी लाइन एंड ही नहीं होनी, चलते जाओ जहां तक नजर जा रही है डैफोडिल्स ही उगे हुए हैं, कंटिन्यूटी में है एंड नेवर एंडिंग लाइन में है। इट मीन्स द डैफोडिल्स हैव ग्रोन एंडलेसली इन ए वेरी लार्ज नंबर एंड एट ए वेरी वास्ट एरिया। they were so many and in a very long way they were grown. They stretched in never ending line. Stretch means spread along the margin of a bay. मार्जिन क्या होता है? एज, किनारा किनारा। मार्जिन क्या होता है? एज, किनारा। बे मीन्स वही लेक जो है, वो लेक के किनारे 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 उगे हुए हैं नेवर एंडिंग लाइन में, उनकी लाइन एंड ही नहीं हो रही। 10,000 saw I at a glance. ग्लास में नजर, लुक। ग्लास मीन्स लुक। एक ही लुक में मैंने जैसे 10,000 देख लिए। कितने देख लिए? जैसे 10,000। 10,000 देख लिए, 10,000 काउंट नहीं किए उसने, वो उसका इमेजिनेशन है ये कि मैंने कितने बहुत ज़्यादा देख लिए। इन वन लुक आई कुड सी सो मेनी ऑफ डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉसिंग मीन्स मूविंग, वो अपना हेड को मूव कर रहे थे। कौन कर रहे? देयर मीन्स डैफोडिल्स का जो हेड है, वो डैफोडिल्स जो थे वो मूविंग, टॉस कर रहे थे, मीन्स मूविंग देयर हेड्स इन ए स्प्राइटली डांस, जैसे बहुत ही खुशी से वो नाच रहे थे। स्प्राइटली होता है वेरी लाइवली, वो बहुत ही हैप्पीनेस से डांस करते हुए, खुशी से नाचते हुए अपना सिर हिला रही थी। फ्लटरिंग एंड डांसिंग ही है ये। तो दिस इज दीज टू लाइन्स चिल्ड्रन। अगेन you will be getting reference to context. The questions will be like this: I wandered lonely as a cloud. Who was wandering? The poet was wandering. Where he was wandering? He was wandering near a lake. Where were the daffodils growing? They were growing near the lake and under the trees. What were the daffodils doing? They were dancing and fluttering in the breeze. How many daffodils were there? There were endless daffodils. Where were they spreading? They were spreading in never-ending line. How many the poet saw at a glance? He saw many, many. He saw around 10,000. Okay, children, read these two paragraphs again and again. Try to understand them.